Good afternoon, children. This is Push English and I am Renuka Singh. I am here to take up the third chapter from the Supplementary Reader Snapshots Class 11, Ranga's Marriage, written by Masti Venkatesh Iyengar. So in this video, I am going to discuss about the characters. Yes, in detail I'll discuss about the author, Masti Venkatesh Iyengar. Then I'm going to introduce the chapter to you, and after that an overview of the chapter, that is a summary in detail. Okay, so let us get started without wasting any time. So first of all, the name of the chapter is Ranga's Marriage, as you all know, and it is written by Masti Venkatesha Iyengar. And if you is an old man, you can see here, this is Masti Venkatesh Iyengar. Okay, and now about him. First of all, you can see his name. It is Masti, M-A-A-S-T-H-I. Okay, but even if the children they write M-A-S-T-I, that is also okay. So Masti Venkatesh Iyengar, he was born on June 6th, 1891, and he died on June 6th, 1986. You can see the incidents that it is just a matter of coincidence rather, that he was born on June 6th and exactly after 95 years he died on June 6th. So anyway, this writer, he is a popular writer in Kannada language. Initially he started writing in Kannada, and out of 8 recipients of Gyanpith Award for Kannada writing, this which is the highest literary honor conferred in India, he is amongst them, and he is 4th person among that 8 recipients of Gyanpith Award. So he is also known as popularly known as Masti Kannadada Kannada da Asti, which means in Kannada, this is the Kannada word, which means Masti is Kannada's treasure. So he is most renowned and most esteemed author in Kannada literature, and he is famous for short stories that he has written. He used to initially write under the pen names, under the pseudonym Srinivasa, and he was also honored with the title Raja Sevasakta by Mysore Maharaja. At that time, when he used to write, Maharaja of Mysore was Nalwadi Krishna Raja Vadiyar. So he wrote more than 120 books in Kannada and 17 in English. And for over 70 years he had been writing. As I told you, to his honors is Gyanpith Award, which was conferred on him in 1983 for one of his novel in Kannada, Chikkavira Rajendra. And in this particular novel, he had written about the Kodava king. The Kodava community was quite displeased with his the negative portrayal of their last king. So there was a lot of hue and cry for this when this novel came into selling, and but it earned a reputation, and he died at the age of 95, as I told you, on June 6th in 1986. So now starting the discussion about the character. Okay, about the characters, there are 4 major characters in this story. The first 3 are Shyama, who is the narrator of the story, Ranga, the story revolves around him, and Ratna, a girl who later on becomes Ranga's wife, and one more is Shastriji, he is the astrologer. So let us start with Shyama. Shyama is the narrator of the story, and he is resident of a village called Hosahalli. तो जो हमारे श्यामा हैं वो इस स्टोरी के नरेटर हैं, और he belongs to a
विलेज नेम्ड होसाली, और उन्हें इतना नाज है अपने इस गांव पर कि वो एक छोटी से छोटी चीज़ भी इतने एग्जैजरेटेड लेवल तक ले जाते हैं, ही बोस्ट अबाउट इट। वो इतना बोस्टफुली उसके बारे में बताते हैं, इतना बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। और इसके अलावा वो एक जेनोफोबिक हैं। तो पहले तो जेनोफोबिक का मतलब समझ लीजिए। जेनोफोबिक आर दोज पीपल who have a dislike of or prejudice against people from other countries. So xenophobic is a person who dislikes prejudice against people of from other countries. So इसीलिए जो भी उनके गांव में जो भी चीज़ ऐसी चल रही है, जैसे वेस्टर्न कल्चर है, इंग्लिश लैंग्वेज है, तो ही डजंट लाइक ऑल दीज थिंग्स। बीच बीच में आपको ये समझ में आएगा चैप्टर के बीच में। सेकेंडली दैट ही फेवर्स द ट्रेडिशनल थिंकिंग एंड लैक्स द एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट राइट फ्रॉम रॉन्ग। और वो कहीं ना कहीं बहुत ही पुराने विचारधारा के हैं और शायद सही गलत की डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगता है कि वो चाइल्ड मैरिज को अप्रूव करते हैं और बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं अरेंज मैरिज में। और इसीलिए शायद जब रंगा अरेंज मैरिज के ख़िलाफ़ है तो वो इतना मैनिपुलेट करते हैं रंगा को कि रत्ना से अल्टीमेटली वो शादी कर लेता है। एंड उसमें ये ही टेक्स रिजॉर्ट टू द लाइज, बहुत झूठ बोलता है बीच में, मैनिपुलेट करता है चीज़ों को, पैसिफाई करके रत्ना को ये इसकी ज़िंदगी में लाता है रंगा के, और उसको ये बिलीव करने पर मजबूर करता है कि तुम दोनों की ज़िंदगी एक साथ है और अच्छी है। और कुछ थोड़ी सी स्टोरी में ही ऑल्सो डिस्प्लेस फॉल्स ह्यूमिलिटी। बट जैसे कि फॉर एग्जांपल जहाँ पर एक जगह है कि ही थिंक्स हिमसेल्फ ग्रेट फॉर हैविंग ब्रॉट रंगा एंड रत्ना टुगेदर, और वो दोनों को उसने मिलाया तो उस चीज़ पर उन्हें बहुत नाज है। बट जब वो अपने बच्चे का नाम, रत्ना और रंगा अपने बच्चे का नाम उसके नाम के ऊपर रखते हैं, यानी कि श्यामा बुलाना चाहते हैं, तो वो कहता है कि श्यामा तो एक बहुत ही ख़राब नाम है, मेरे जैसे काले इंसान का नाम श्यामा होना चाहिए, तुम्हारा बेटा तो बहुत गोरा है। इस तरीके की चीज़ें इसमें हैं। ठीक है, तो अब जो दूसरा कैरेक्टर है उसके बारे में बात करते हैं। दूसरा कैरेक्टर है हमारा मेन रोल प्ले करने वाला मेन प्रोटोगनिस्ट, और वो है रंगा। हु इज़ रंगा? रंगा इज़ सन ऑफ विलेज अकाउंटेंट, और ही हैड गॉन टू बैंगलोर टू स्टडी। और जब ऐसा होता है तो जब वो लौट कर आता है तो पूरे गांव वाले उसको देखते हैं, एंड ही इज़ टोटली अगेंस्ट दिस थिंग, चाइल्ड मैरिज। और उसका ये मानना है, स्ट्रांगली वो बिलीव करता है कि एक आदमी को एक औरत से शादी करनी चाहिए जिससे वो प्यार करता हो। और वो काफ़ी ट्रेडिशनल है, कभी भी श्यामा के ख़िलाफ़ बात नहीं करता, रिस्पेक्ट शो करता है एल्डर्स को, क्योंकि एक जगह पर है जहाँ वो श्यामा को ग्रीट करता है उनकी फीट टच करते हुए, और उसके बाद से किस तरीके से परिस्थितियाँ बनती हैं। एंड ही फॉल्स इन लव विद रत्ना सिर्फ उसके गाने को सुन करके। और हालांकि उसने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली है, बट ही स्टिल नेव, अभी भी नया है और अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। और वो बहुत ही आसानी से इसलिए शास्त्री जी की बातों में भी आ जाता है, एस्ट्रोलॉजर की बातों में भी आ जाता है, जो वो उसके भविष्य के बारे में बता रहे होते हैं। तो ये है हमारा रंगा। अब आगे बढ़ते हैं, ये हमारी रत्ना। रत्ना जो है वो रामाराव की नीज़ है, उनकी भांजी है रामाराव की, उसकी उम्र मात्र 11 साल है, और शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर। और स्टोरी में काफ़ी कुछ है उसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं दिया है जितना रंगा और श्यामा के बारे में, उतना नहीं है। फिर भी डिटेल्स हैं कि किस तरीके से स्टोरी में शी इज़ वेरी शाई इन नेचर एंड शी रन्स इनसाइड as soon as Ranga comes to visit, and then later on she is married to Ranga at the end of the story. और बीच में और थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है that she plays harmonium and violin and singing अच्छी करती है, and because वो अनाथ हो जाती है तो वो अपने अंकल रामाराव के यहाँ होसाली में
रहने आ जाती है। तो ये है स्टोरी में। इसके अलावा एक कैरेक्टर और हैं, और वो हैं हमारे शास्त्री जी, जिनका थोड़ा सा जिक्र है, इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में बता दूं। शास्त्री द एस्ट्रोलॉजर, ही इज़ देयर इन द स्टोरी। और ये एस्ट्रोलॉजर वही हैं जिनकी मदद से श्यामा जो है, जो हमारे नरेटर हैं, he seeks his help and in bringing about Ranga and Ratna together. And जिस तरीके से वो शास्त्री जी ही रीड स्टार्स एंड ही मेड कैलकुलेशन, और फिर वो डिक्लेयर करते हैं और रंगा के दिमाग में ये बात डालते हैं कि कुछ भी जो ओशन में पाया जाता है उस नाम से, उस नाम की एक लड़की से तुम्हारा कोई लेना देना है, और वो रत्ना भी हो सकती है। रत्न मतलब पहले तो बहुत सारे नाम की गेसिंग्स करता है वो, लेकिन फिर बाद में अल्टीमेटली वो रत्न यानी रत्ना। तो वो काफ़ी कन्विंस हो जाता है रंगा कि स्टार्स भी ये चाहते हैं कि मैं रत्ना से शादी करूं। तो इस तरीके से शास्त्री का थोड़ा सा ही रोल है, लेकिन हाँ इम्पॉर्टेंट रोल है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं रंगाज मैरिज की समरी। वैसे तो रंगाज मैरिज इज़ अ चैप्टर विच इज़ एन इंटरेस्टिंग टेक ऑन द स्टोरी ऑफ अ मैरिज by written by obviously मस्ती वेंकटेश अयंगर। स्टोरी में नरेटर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में इंसिडेंट बताई है रियल लाइफ से, और किस तरीके से होसाहल्ली को उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और अल्टीमेटली हाउ ही डिसाइड्स टू मैरी ऑफ रंगा टू अ सूटेबल गर्ल कॉल्ड रत्ना। ये है स्टोरी में। अब डिटेल में समरी डिस्कस करते हैं, आइए। और रंगाज मैरिज इज़ जो ये समरी है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि इसमें उन्होंने किस तरीके से एक लड़के के बारे में बात की है, रंगा के बारे में बात की है। और इस लड़के के बारे में ख़ास चीज़ ये है कि ही इज़ द फर्स्ट वन टू गो टू बैंगलोर टू लर्न इंग्लिश। और जब वो लौट कर आता है तो नरेटर और बाकी के विलेजर्स उसको देखने के लिए इकट्ठा होते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि रंगा काफ़ी बदल गया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कोई चेंजेस नहीं आए हैं। ही हैड नॉट गॉन थ्रू एनी चेंजेस। तो नरेटर जैसे ही रंगा को देखते हैं, वो तुरंत उनके दिमाग में ये बात आने लगती है। जैसे उसे उन्हें ये पता चलता है कि रंगा इज़ अगेंस्ट अरेंज मैरिजेस, तो ये तुरंत उसको अरेंज मैरिज की तरफ ही पुश करते हैं। और ऐसा समय पर ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि इट ऑल टेक्स प्लेस इन ड्यूरेशन दैट किस तरीके से रंगा और रत्ना की शादी मटेरियलाइज होती है, और विलेजर्स की लाइफ के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किया हुआ है। तो रंगा जो है, एक थोड़ा सा और बता दें इसके बारे में आपको कि रंगा होसाहल्ली का रहने वाला है, जहाँ का श्यामा रहने वाले हैं। मैसूर में एक विलेज है, बैंगलोर पढ़ने जा रहा है, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन उसने रिसीव की है। और जब वो गांव लौट कर आता है तो मैंने आपको बताया जैसे कि विलेजर्स दे फ्लड टू हिज प्लेस, वो इकट्ठे हो जाते हैं, और वो ये नोटिस करना चाहते हैं इस बॉय में कोई चेंज आया है कि नहीं। लेकिन वो इतने डिसअपॉइंट होते हैं कि ये लड़का तो वैसे का वैसे ही है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया। एंड ही सो सिंपल एंड डाउन टू अर्थ, सो हम्बल, कि हर किसी को वो ग्रीट करता है नमस्कार से। और जब सब लोग चले जाते हैं तो किस तरीके से श्यामा उससे बात करते हैं। उससे पहले श्यामा नरेटर ने विलेज होसाहल्ली के बारे में बात की, जो कि एक बहुत ही अच्छा विलेज है, जहाँ पे अच्छे आम के लिए वो फेमस है, वहाँ के मैंगोज़ के लिए। फिर ये इतना फेमस इसलिए नहीं हुआ, अब यहाँ श्यामा बीच में दोष दे देते हैं कार्टोग्राफर्स को नहीं, जो हिस्ट्री में जिन्होंने लिखा है, उन्होंने होसाहल्ली का नाम एक छोटे गांव होने के नाते इग्नोर कर दिया, वो फेमस नहीं हुआ। इस तरीके से वो काफ़ी दोष मढ़ते हैं हिस्ट्री के राइटर्स को। और उसके बाद से आते हैं स्टोरी में आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ पर दिखाया गया कि किस तरीके से जब नरेटर बात करते हैं रंगा से शादी के बारे में, तो वो जो है बताता है कि मैं तो मतलब इंसान को ऐसी लड़की से शादी करनी चाहिए जो जिससे वो प्यार करता हो। तो उसका ये मानना है कि वो एक मैच्योर और एडमिरेबल लड़की से ही शादी करेगा। और तभी तुरंत नरेटर डिसाइड करते कि नहीं, इस लड़की की तो शादी करनी पड़ेगी। और उन्हें ऐसा लगता है कि रत्ना एकदम सही लड़की है, रत्ना रामाराव की नीज़ है, भांजी है। वो गाँव में अभी हाल ही में रहने आई है क्योंकि अनाथ हो गई है, उसके पेरेंट्स एक्सपायर कर गए हैं, तो अब वो अपने अंकल के साथ यहाँ रहने आ गई है। और उन्हें लगता है कि रत्ना मैच्योर और एडमिरेबल लड़की है, जबकि शी इज़ जस्ट 11 years old। और
जो है रत्ना के बारे में स्टोरी में है, आप डिटेल में पढ़ेंगे। और उससे पहले फिर नरेटर जैसे डिसाइड करते हैं तो उन्हें लगता है कि रत्ना काफ़ी अच्छी मैच साबित होगी। रत्ना हालांकि एक बड़े टाउन को बिलोंग करती है और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स वीणा और हारमोनियम बहुत अच्छे से प्ले करती है, इन वाद्य यंत्रों के बारे में बहुत अच्छे से जानती है, उन्हें बजाती है और बहुत अच्छा गाती भी है। तो नरेटर एक प्लान के तहत रत्ना को डिलिबरेटली बुलाते हैं अपने घर। उन्हें मालूम है रंगा उनके घर आने वाला है, पूरी प्लानिंग ऐसे की होती है उन्होंने। और जैसे ही वो रंगा रत्ना को बोलते हैं कि तुम एक गाना सुनाओ, और वो गाना शुरू ही कर रही होती है, गाना ही शुरू किया होता है उसने, तब तक रंगा आ जाता है एंड रंगा गेट्स मेस्मराइज्ड। और तो इस तरीके से खेल खेल करके और झूठ बोल करके अल्टीमेटली रंगा की शादी उससे करा दी जाती है। बीच में थोड़ा सा उसको डिसअपॉइंटमेंट इसलिए होता है क्योंकि वो उसका मन टटोलने के लिए बोलता है कि रत्ना की तो शादी हो गई है, क्योंकि वो रत्ना को लाइक करने लगता है। और फिर नरेटर के प्लान के हिसाब से वो एस्ट्रोलॉजर के पास ले जाता है। वहाँ ऑलरेडी रंगा के लिए उसने अरेंजमेंट्स कर रखे हैं, सब कुछ प्री प्लान्ड होता है। एस्ट्रोलॉजर जब क्वेश्चन पूछते हैं रंगा से तो वो ये फैक्ट उनके सामने एडमिट करता है कि मैं रत्ना को लाइक करता हूँ, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो तो शादीशुदा है। तो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि नहीं, अगर तुम उस लड़की से प्यार करते हो, किसी ऐसी लड़की से प्यार करते हो जिसका नाम शायद समुद्र से संबंधित है, तो वो एक दो नाम भी लेता है, पच्ची यानी मॉस, और फिर कमला यानी लोटस, फिर अल्टीमेटली रत्न यानी पर्ल जो ओशन में पाया जाता है। तो इस ये सब सुन के रंगा बहुत खुश हो जाता है कि रत्ना के साथ इसका फ्यूचर में कुछ एक दिख रहा है, भविष्य में उसके साथ शायद रिलेशन दिख रहा है। तो लेकिन दोबारा ही वो सैड हो जाता है क्योंकि वो उसे लगता है कि शायद वो अवेलेबल नहीं हो पाएगी या शायद ये चीज़ मटेरियलाइज नहीं हो पाएगी। लेकिन जैसे ही कंफर्मेशन होता है कि रत्ना इज़ अनमैरिड, रंगा उससे और ज़्यादा प्यार करने लगता है और वो डिसाइड करता है कि शादी करेगा। इधर नरेटर रत्ना के घर जाते हैं और रंगा के लिए उसका हाथ मांगते हैं। फाइनली स्टोरी काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ती है और 10 साल का वक्त बीत जाता है। और इधर 10 साल के बाद हमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रंगा नरेटर के घर आते हैं और उन्हें इनवाइट करने अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर, यानी शादी हुए कई साल हो गए और इनका ये इसके बेटे का तीसरा जन्मदिन है। तब वहाँ हमें पता चलता है लास्ट में कि रंगा और रत्ना की शादी हो गई है। और रंगा ने यहाँ तक कि अपने बेटे का नाम भी नरेटर के नाम पे रखा है, क्योंकि उसका ये मानना है कि उसकी ज़िंदगी में अगर आज खुशी है, उसकी पत्नी है, उसका बच्चा है, तो वो श्यामा की वजह से, इसलिए वो अपने बच्चे का नामकरण श्याम के नाम पे करता है। तो ये तो स्टोरी थी पूरी। तो कंक्लूजन ये है कि समरी ये है, ये कह लीजिए कि हम एक बहुत ही खूबसूरत गांव के बारे में उसकी खूबसूरती जान रहे हैं, उसके कस्टम, उसके ट्रेडिशंस, उसके अलावा किस तरीके से एक स्ट्रगल दिखाई गई है कि जो हमारा कल्चर है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे रीति रिवाज हैं, और वो उसकी एक लड़ाई है वेस्टर्नाइजेशन के खिलाफ। वेस्टर्नाइजेशन यहाँ पर मतलब क्या, लव मैरिज, और हमारा कल्चर यानी क्या, अरेंज मैरिज। तो ये स्टोरी है अरेंज मैरिज वर्सेस लव मैरिज की, which is manipulated by narrator, and ultimately he materializes Ranga's marriage with Ratna. So बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो इसके अलावा अब जो है यहाँ तक काफ़ी है, और अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी फॉर लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन. So those who have watched the video till the end and they have liked it, please do like, comment and share this with your friend. And yes, those who have yet not subscribed my channel, please go and subscribe it, and नोटिफिकेशन के लिए भी बेल आइकॉन टैप कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो मैं नया अपलोड करूं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए. सो गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय बाय.